All of you are most welcome to watch this video। ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਜ਼ਲਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਜ਼ਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। NTSC ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ NMMS ਐਕਸੈਟਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਛ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਬਰਡਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੁੱਝਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਸਟ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਰਸ ਐਂਡ ਹੈਡ ਹੰਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੌੜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਨਾਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿ C ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ E, D is not at the extreme end, B is sitting at immediate right of E, F is not at the right end but D is sitting at third left of E, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। C is sitting between A and E। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ C ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ C ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, A ਦੇ ਅਤੇ E ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਐਂਡ E ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਗੇ D is not at the extreme end। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ D ਹੈਗਾ ਆ ਐਕਸਟਰੀਮ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ। D ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। D ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆ B is sitting at immediate right of E। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ E ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ B is sitting at immediate right of E ਮੀਨਸ ਕਿ E ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ B ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ F is not at the right end। ਹੁਣ F ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ,
एफ राइट एंड इधर लाया, लैफ्ट एंड इधर है। एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, ठीक है, बट इट ही कैन बी एट द लैफ्ट एंड। वो लैफ्ट एंड के उत्ते बैठ सकता ना, राइट ते नहीं बैठा, वो लैफ्ट के उत्ते बैठ सकता है। एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड बट डी इज़ सिटिंग एट थर्ड लैफ्ट ऑफ ई। हुण ई दा थर्ड लैफ्ट के उत्ते डी बैठा है। ई दा थर्ड लैफ्ट, ई दी लैफ्ट साइड इधरली 1 1 2 ते थर्ड इत्थे वो ई बैठा है, ठीक है। हुण देखो साडा अरेंजमेंट हो गया ना इहदे अकॉर्डिंगली। हुण असीं ये जो साडी लाइन बनी है इहदे अकॉर्डिंगली असीं अपने क्वेश्चनस दे आंसर देवांगे। हुण हैगा कि हाउ मैनी पर्सनस आर देयर टू द राइट ऑफ डी। हुण डी दे राइट साइड उत्ते, सॉरी इत्थे ई नहीं सी, इत्थे आउणा सी साडा डी, मैं मिसटेक कर गई, इत्थे डी है। डी इज़ सिटिंग एट थर्ड लैफ्ट ऑफ ई दी थर्ड लैफ्ट के उत्ते डी बैठा है। हाउ मैनी पर्सनस आर देयर टू द राइट ऑफ डी। हुण डी दी राइट किहड़ी आ, इधरले पासे दी, ते किन्ने जने बैठे ने उत्थे 1 2 3 एंड 4। किन्ने जने बैठे हैगे ने इहदे विच, इहदे राइट हैंड दे उत्ते 4, देयर आर 4 पर्सनस, मीनस इहदा डी आंसर ठीक होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लैफ्ट ऑफ डी। डी दी लैफ्ट ते कौन बैठा है, एफ बैठा है। हु इज़ एट द इमीजिएट लैफ्ट ऑफ सी। सी दी इमीजिएट लैफ्ट के उत्ते कौन हैगा आ, ए बैठा आ। हु इज़ एट द राइट एंड, राइट एंड के उत्ते कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। इदां साडे सारे क्वेश्चनस के आंसर आ जाएंगे। सब तो पहला असीं क्वेश्चन की जिहड़ी सिचुएशन है उसनूं असीं क्रिएट करांगे, उहदे अकॉर्डिंगली फिर असीं अपने क्वेश्चनस के आंसर देवांगे, ठीक है। आई होप कि तुहानूं समझ लग गई होएगी। चलो नैक्सट क्वेश्चन असीं देखदे हां। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ये साडा पजल के उत्ते बेस्ड है। असीं हुण इहनूं ध्यान नाल पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सानू इन्फॉर्मेशन की दिती हुई है कि देयर आर 6 सिटीज़, 6 शहर ने, ए बी सी डी ई एंड एफ। देयर आर 6 सिटीज़, और 6 सिटीज़ जिहड़े ने किस तरीके दे हन, उन्होंने कंडीशनस दे दित्तियां ने। ए इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, ए जिहड़ा हिल स्टेशन नहीं है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसिस, हिल स्टेशन हिस्टोरिकल प्लेसिस। डी इज़ नॉट इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसिस, ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ये 5 सानू कंडीशनस दे दित्तियां ने। हुण इन्हां 5 कंडीशनस के बेस के उपर असीं इन्हां क्वेश्चनस के आंसर देने, ठीक है। हुण ये जिहड़े इस तरह के क्वेश्चनस हुंदे ने, इन्हां क्वेश्चनस दे विच असीं एक पहला टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। टेबल बहुत ईजी हुंदा है तैयार करना, बस उन्होंने ध्यान नाल देखना तुसीं कि किस तरह बनाउणा असीं। वो टेबल दे विच्चों ही तुहानूं क्वेश्चनस के आंसर जिहड़े ने वो मिल जाणगे। वो टेबल असीं इन्हां कंडीशनस के अकॉर्डिंगली बनावांगे। हुण वो टेबल असीं किस तरह बनाउणा है, देखो ये टेबल इस तरीके का बनता है, जिस तरह ये टेबल बनया होया है इस तरीके का ये टेबल बनता। हुण ये टेबल बनेगा किवें, मैं तुहानूं वो दसदी हां, ठीक है। देखो सानूं आ दित्ता होया वा इहदे विच, आ सानूं 6 सिटीज़ दे दित्ते, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ, इन्हों असीं इत्थे लिख लिया, ए दैन बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। हुण अगे इधर सानूं की दिता है कि एक सानूं दित्ती है हिल स्टेशन की, वो असीं इत्थे लिख लांगे, हिल स्टेशन मीनस एच एस, ठीक है। अगे सानूं दित्ती हैगी आ इंडस्ट्रीयल, उत्थे असीं आई पा सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया हिल स्टेशन, दूजा इंडस्ट्रीयल प्लेसिस, तीसरी सानूं की दित्ती हुई आ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। एक मिनट मैं तुहानूं फिर लिख के दिनी आ। पहले विच असीं लिख लैंदे हिस्टोरिकल प्लेस मीनस कुछ भी लिख सकते हो तुसीं, हिस्टोरिकल प्लेस मीनस एच पी लिख सकते हैं। दूसरे दे विच लिख सकते हैं इंडस्ट्रीयल, तीसरे दे विच लिख सकते हैं हिल स्टेशन मीनस एच एस, ठीक है। इत्थे असीं लिख सकते हैं ए, दैन अगला हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया डी, फिर हो गया एफ, सॉरी ई, दैन एफ, ठीक है। हुण सानूं कंडीशन की दित्ती है कि ए इज़ नॉट अ हिल स्टेशन। हुण ए जिथे हिल स्टेशन आ उत्थे साडा क्रॉस लग जाएगा, ए इज़ नॉट ए हिल स्टेशन। दैन बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसिस, हिस्टोरिकल प्लेस दे विच साडा बी भी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं आ और ई भी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं आ, ठीक है। डी इज़ नॉट इंडस्ट्रीयल सिटी, डी इज़ नॉट इंडस्ट्रीयल सिटी। आपां डी दा ते इंडस्ट्रीयल सिटी दे अगे जिहड़ा है उहनूं लगा लांगे, क्रॉस लगा लांगे। नैक्सट
A and D are not historical places। ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, A ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, D is not a historical place। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ, A and B are not alike। ਹੁਣ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਏ ਕ੍ਰੋਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਬੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਚ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਸ। ਅਸੀਂ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਿਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਈ ਐਂਡ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਈ ਅਤੇ ਐਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫ 'ਤੇ ਟਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਬਟ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਥਰਡ, ਵਿਚ 2 cities are hill station? Oh no, we have done it. We are doing same. Fourth question, which city is a hill station and industrial center but not historical place? Means HS 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਈ ਵਾਲਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ, ਏ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਚ 2 cities ਆਰ ਨੀਦਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੀ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਡ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਅਰ ਆਰ 30 ਪਲਾਂਟਸ ਆਫ ਚੀਕੂ, ਗੁਆਵਾ, ਸੀਤਾਫਲ ਐਂਡ ਮੈਂਗੋ ਇਨ ਆ ਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 30 ਪਲਾਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ one pair of mango plants after ਚੀਕੂ ਐਂਡ ਗੁਆਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਗੁਆਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਮੈਂਗੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਹੈ।
फिर की आ एंड मैंगो प्लांट्स आर फॉलोड बाय 1 चीकू एंड 1 सीताफल प्लांट एंड सो ऑन। कितना है देखो, देयर इज़ 1 पेयर ऑफ मैंगो प्लांट्स आफ्टर चीकू एंड गुआवा एंड मैंगो प्लांट्स आर फॉलोड बाय 1 चीकू एंड 1 सीताफल प्लांट एंड सो ऑन। इफ द रो बिगनस विद द प्लांट ऑफ चीकू मीनस कि साडी चीकू तो जिहड़ी आ रो शुरू हो रही है। ठीक है, हुण उत्ते कंडीशन की दित्ती है, देयर इज़ 1 पेयर ऑफ मैंगो प्लांट्स आफ्टर चीकू एंड गुआवा। दैट मीनस कि चीकू तो शुरू हो गई, उस तो बाद की आ गया साडे कोल गुआवा आ गया। फिर चीकू ते गुआवा तो बाद साडे कोल एक पेयर जिहड़ा है वो मैंगो दा है। ठीक है, ये हो गया। दैन मैंगो प्लांट्स आर फॉलोड बाय 1 चीकू एंड 1 सीताफल। आ जिहड़े 2 मैंगो प्लांट्स ने, इस तो बाद 1 चीकू एंड 1 सीताफल। आ साडी जिहड़ी आ सीक्वेंस बन रही आ। एक ये हो गया, फिर उस तो बाद एक होर ग्रुप हो जाएगा इसी तरह का। ठीक है, फिर होर ग्रुप हो जाएगा, इदा रो उन्होंने क्या कि इतों शुरू हो गई है। नैक्सट हुण अगे की होएगा, उन्होंने पूछा कि दैन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट इन द रो। हुण इदां दे साडे कोल किन्ने ग्रुप्स बनणगे, 30 प्लांट्स ने ते इत्थे 1 2 3 4 5 ते 6 हो गए ना एक दे विच, ते 6 5 आर 30 पूरा पूरा आ गया ना साडे कोल। हुण जे 6 दे विच लास्ट जिहड़ा होएगा उही जिहड़े असीं 5 ग्रुप बना लांगे उही लास्ट विच होएगा, ते फिर लास्ट विच साडा किहड़ा आएगा, सीताफल। साडा आंसर फिर की आ जाएगा डी पार्ट, सीताफल। ठीक है, हाँ जी। अगे देखिए क्वेश्चन नैक्सट जिहड़ा हैगा इहदे विच देखो की आ, 4 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स सिटिंग इन ए सर्कल। हुण किद्दां बैठे ने, वो सर्कल दे विच बैठे आ। ठीक है, नैचुरली कार्ड्स खेल रहे आ ते वो सर्कल 'च बैठे आ। सर्कल 'च बैठे आ ते इहदा मतलब कि सब दा जिहड़ा मूँह हैगा आ वो सेंटर वाली साइड नूं आ, इधर नूं मूँह करके बैठे होणगे। सर्कल 'च बैठिਆਂ दा अंदरली साइड नूं फेस है। सो अंदरली साइड नूं फेस है ते हर एक दी राइट साइड इधर ते लैफ्ट साइड इधर। ठीक है, हुण 4 friends were playing a game of cards sitting in a circle. Shankar was on the right of Ram and Gopal was on the left of Arvind. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਾਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਾਮ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ठीक है, इधर कौन बैठा है, इधर शंकर बैठा है। फिर नैक्सट अगे की उन्होंने क्या आया, गोपाल वाज ऑन द लैफ्ट ऑफ अरविंद। अरविंद दी लैफ्ट दे उत्ते राम बैठा आ गोपाल, अरविंद दी लैफ्ट दे उत्ते गोपाल। जे असीं गोपाल नूं मान लो इत्थे बिठाउने ते इधरले पासे ते उहदी राइट साइड हो जाती है, तो गोपाल जिहड़ा अरविंद दी लैफ्ट दे उत्ते बैठा है। ठीक है, इहदा मतलब की होएगा फिर कि साडे कोल इत्थे सॉरी गोपाल वॉज ऑन द लैफ्ट ऑफ अरविंद। हुण अरविंद नूं असीं कित्थे बिठावांगे, फिर इत्थे बिठावांगे, इत्थे अरविंद बैठेगा। अरविंद दी लैफ्ट साइड इधर हो जाएगी ना, लैफ्ट साइड उहदी इधर हो जाएगी, तो अरविंद दी लैफ्ट दे उत्ते कौन बैठेगा, फिर गोपाल बैठेगा। ठीक है, तो सानू क्वेश्चन उन्होंने की पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर द पार्टनर्स। हुण पार्टनर्स किहड़े होणगे, जिहड़े ऑपोजिट साइड ते बैठे होणगे। हुण इत्थे पहला दिता है राम एंड शंकर, तो राम ते शंकर ऑपोजिट नहीं है, गोपाल एंड शंकर भी ऑपोजिट नहीं है, राम एंड अरविंद भी ऑपोजिट नहीं है। हुण ऑपोजिट कौन बैठे ने, गोपाल एंड राम। ਇਹਦਾ मतलब गोपाल एंड राम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पार्टनर्स ने, क्योंकि कार्ड्स खेडते वक्त ਜਿਹੜੇ पार्टनर्स होणगे वो ऑपोजिट साइड ते बैठे होणगे। ठीक है, ये सी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। नैक्सट अगे असीं देखते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। एक टेबल के चारे पासे बैठे हुए ने। ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ। इत्थों असीं सिचुएशन जिहड़ी आ वो क्रिएट करांगे। ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ, E is opposite to D and C is not in either of the neighboring seats of E who is opposite to B। इनू असीं सॉल्व करके देखते हैं। देखो इनू तुसीं ध्यान नाल देखो क्वेश्चन नूं, इत्थे भी स्टेटमेंट लिखी हुई है किद्दां बैठे हुए ने। ए बी सी डी ई एंड एफ 6 जने ने ना, आपां 6 जणिਆਂ ਨੂੰ इस तरीके दे नाल बिठा लैंदे आ। 6 असीं पॉइंट्स बना लैंदे आ।
ठीक है 6 पॉइंट्स बन गए इन्हों ने। हुण ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ, ई ते एफ दे विचकार मान लो असीं इत्थे ए नूं बिठा दिंदे आ, जिहड़ा ए हैगा वा वो ई दे ते एफ दे विचकार है। ए इज़ बिटवीन ई एंड एफ एंड ई इज़ ऑपोजिट टू डी, इहदा मतलब ई दे ऑपोजिट कौन बैठा इत्थे, डी बैठा। एंड सी इज़ नॉट इन ईदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ ई, जिहड़ा सी हैगा वा वो ई दे किसी भी नेबरिंग सीट ते नहीं आ, क्योंकि एक पासे तो दा आ गया ई ते इत्थे भी उहदी नेबरिंग सीट बन गई, इत्थे भी सी नहीं हो सकता ते साडे कोल इक्को सीट बची, फिर सी इत्थे आ जाएगा ते रह कौन गया फिर साडे कोल बी, वो बी इत्थे आ जाएगा। फिर हुण उन्होंने क्वेश्चन पूछा आ हू इज़ ऑपोजिट टू बी, हुण बी दे ऑपोजिट कौन हैगा आ, एफ, साडा आंसर की आ जाएगा ये फिर एफ आ जाएगा। इस तरह से ये सिचुएशन जी क्रिएट करांगे। ठीक है नैक्सट अगे जो क्वेश्चन है इनू तुसीं देखो ध्यान नाल, इहदे असीं टेबल बना के करांगे सेम उस तरह ही। हुण इह च क्वेश्चन है 9 to 14, देखो किन्ने क्वेश्चन ये कवर हो रहे हैं 9 तो लैके 14 तक। हुण इहदे च असीं टेबल किद्दां बनावांगे, क्वेश्चन पहलां ध्यान नाल पढ़िए। आशा एंड चारू आर गुड इन मैथमैटिक्स एंड एथलैटिक्स, ठीक है आशा जिहड़ियां ते चारू ने वो मैथमैटिक्स और एथलैटिक्स विच अच्छियां ने। दीपा एंड आशा आर गुड इन एथलैटिक्स एंड स्टडीज़, चारू एंड बीना आर गुड इन जनरल नॉलेज एंड मैथमैटिक्स। दीपा बीना एंड इला आर गुड इन स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज, इला एंड दीपा आर गुड इन स्टडीज़ एंड आर्ट। हुण इहनूं देख के ते असीं एक टेबल बना लांगे, ठीक है फिर असीं उहदे विचों आ क्वेश्चनस दे तुहाडा टेबल ठीक बन जाएगा, फिर तुहाडे क्वेश्चन दे आंसर अपने आप ही ठीक आ जाएंगे। सो असीं पहलां इहदा टेबल किस तरह बनावांगे, टेबल नूं ध्यान नाल देखो। टेबल की हैगा है देखो, असीं उपर लिख लिया मैथ्स एथलैटिक्स स्टडीज़ जीके एंड आर्ट। इधर असीं सारे जिहड़े ने उन्हां दे नेम्स लिखने ने, जिन्ने भी इहदे विच बच्चों के नाम दिते हुए ने, इत्थे असीं सबजैक्ट्स लिख लिया। ठीक है हुण इहदे विच असीं अपनी उहदे अकॉर्डिंगली जो सानू कंडीशनस दित्तियां होईयां ने उहदे अकॉर्डिंगली असीं इहदे विच टिक लगाई जावांगे। किद्दां आएगा देखो, उन्होंने कहा कि आशा एंड चारू आर गुड इन मैथ्स एंड एथलैटिक्स। हुण आशा दी ते चारू दी, आशा जिहड़ी आ मैथ च भी ठीक आ ते आशा जिहड़ी हैगी आ एथलैटिक्स च भी ठीक है। इहदा मतलब चारू ते ये भी दोवें ठीक हो गईयां फिर। ठीक है नैक्सट अगे उन्होंने दिता आ कि दीपा एंड आशा आर गुड इन एथलैटिक्स एंड स्टडीज़। दीपा एंड आशा आर गुड इन एथलैटिक्स एंड स्टडीज़। हुण असीं एथलैटिक्स ते स्टडीज़ दा लवांगे। दीपा जिहड़ी हैगी आ वो एथलैटिक्स से भी ठीक हैगी आ, ठीक है दीपा एथलैटिक्स दे विच ते स्टडीज़ दे विच ठीक है। दैन आशा जिहड़ी आ वो भी एथलैटिक्स ते ऑलरेडी आ और वो स्टडीज़ से भी ठीक है। ठीक है दैन चारू एंड बीना, हुण असीं आवांगे चारू ते बीना नूं देखांगे ये किदे किदे विच ठीक ने, दे आर गुड इन जीके एंड मैथमैटिक्स। हुण असीं जीके च देखांगे चारू जिहड़ी आ वो जीके च भी ठीक हैगी आ और वो मैथ्स ते ऑलरेडी साडी टिक लगी हुई आ। चारू एंड बीना, उस तो बाद असीं बीना देखांगे, बीना मैथ्स से भी ठीक आ और बीना जिहड़ी हैगी आ जीके च भी ठीक है। ठीक है नैक्सट अगे हैगा आ दीपा बीना एंड इला स्टडीज़ एंड जीके। हुण असीं स्टडीज़ दा ते जीके दा देखांगे। इला नूं देख लैंदे आ पहलां असीं, इला जिहड़ी हैगी आ वो स्टडीज़ च भी ठीक है जीके च भी ठीक हैगी आ, दो सबजैक्ट आ गए साडे। और इहदे नाल बीना जिहड़ी हैगी आ, बीना भी साडे कोल स्टडीज़ से भी ठीक है जीके जो ऑलरेडी ठीक हैगी सी। ठीक है उस तो बाद साडे कोल दीपा आ, दीपा जिहड़ी आ स्टडीज़ ऑलरेडी ठीक सी ते जीके च भी ठीक आ गई। ठीक है नैक्सट अगे उन्होंने दिता है जी इला एंड दीपा। हुण इला ते दीपा स्टडीज़ ते आर्ट, इला जिहड़ी आ वो आर्ट च भी ठीक आ ते स्टडी च ऑलरेडी ठीक आ। दीपा एंड इला, दीपा जिहड़ी आ जी स्टडीज़ च पहलां ठीक सी ते इत्थे आर्ट च भी ठीक आ गई। ठीक है ये साडियां सारियां जिहड़ियां कंडीशनस ने उहदे अकॉर्डिंगली असीं जिहड़ा सारा टेबल बना लांगे। जिथे जिथे साडा टिक नहीं लग्या उत्थे असीं हुण क्रॉस लगा लांगे, क्योंकि सानू नो वाला भी तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है तो इस तो बाद दो इत्थे लग गए
फर्स्ट दे विच इत्थे भी लग जाएगा, इत्थे भी लग जाएगा, इत्थे भी लग जाएगा, इत्थे भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, तो ये भी लग जाएगा। ठीक है, हुण इन्हां दे अकॉर्डिंगली साडे कोल जिहड़े ने क्वेश्चनस ने। ठीक है, इन्हां दे अकॉर्डिंगली आपां क्वेश्चनस दे आंसर जिहड़े दे सकदे हां। हू इज़ गुड इन स्टडीज़ जीके एंड स्टडीज़ जीके एंड आर्ट। हुण इहदे क्वेश्चनस मैं तुहानूं दसदी हां कि क्वेश्चन किहड़े-किहड़े सीगे। फर्स्ट क्वेश्चन सीगा हू इज़ गुड इन स्टडीज़ जीके एंड एथलैटिक्स। असीं स्टडीज़ जीके एंड एथलैटिक्स दे विच वेखांगे भी कौन कौन ठीक हैगा आ। ठीक है, असीं पहला देखांगे एथलैटिक्स, स्टडीज़ एंड जीके दे विच, ते तिन्नां दे विच कौन ठीक हैगा। देखो जे आशा इन्हां दोनां च ठीक हैगी है तो इहदे च नहीं ठीक हैगी। ठीक है, चारू जिहड़ी आ इन्हां दोनां च ठीक है तो इहदे च नहीं ठीक। ठीक तिन्नां चों कौन आ, सिर्फ दीपा। दीपा जिहड़ी आ वो तिन्नां दे विच ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर साडा आ जाएगा दीपा तिन्नां विच ठीक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होणगे। नैक्सट अगे अगर 10th क्वेश्चन सीगा हू इज़ गुड इन स्टडीज़ जीके एंड मैथमैटिक्स। स्टडीज़ जीके एंड मैथ्स, असीं स्टडीज़ जीके ते मैथ्स दे विच देख लांगे तिन्नां च कौन ठीक है, वो आंसर असीं दे देवांगे इहदे विच। ठीक है, देखो उहदे विच कौन हैगी आ, इहदे च आ ते आ ठीक आ जाएगी। समझ लगी। इदां असीं इन्हां दे क्वेश्चनस दे जिहड़े ने ओह आंसर देने। इस तरह ही क्वेश्चन है हू इज़ गुड इन स्टडीज़ मैथमैटिक्स एंड एथलैटिक्स, असीं वो देख लांगे किहदे किहदे विच टिक हैगी आ, वो देख लांगे। फिर जिहदे विच आ जाएगा मान लो कि जे किसे हू इज़ नॉट, एक क्वेश्चन हैगा आ हू इज़ नॉट गुड इन ओनली वन एरिया। किहड़ा बच्चा इहो जिहा वा जिहड़ा एक सबजैक्ट विच क्रॉस है ते बाकी सारिਆਂ विच ਉਹਦਾ ठीक हैगा आ, ਉਹ कौन हैगी है साडी सिर्फ दीपा। ਉਹਦੀ सिर्फ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ठीक नहीं आ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟ है। सो ये ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस ने ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ कि फेस किधर आ उन्हों का, राइट देखना आ लैफ्ट देखना आ, वो अकॉर्डिंगली तुसीं जिहड़े ने आंसर देवोगे। ठीक है, आई होप कि तुहानूं अज वाले क्वेश्चन जिहड़े ने समझ लग गए होणगे। सो डू दीज प्रैक्टिस ते अपना जिहड़ी चैनल नूं सबसक्राइब बेटे जरूर कर लेना ताकि तुहानूं नैक्सट भी जिहड़ियां ने वीडियोज़ मिल सकन। एंड डू योर प्रैक्टिस। थैंक यू बेटा।